ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दिस इज अ स्कैम। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। अरे कितना गोल सीकिंग आदमी है ये, कितना टुमारो में जीने वाला आदमी है ये, कितनी कल्पना में जीने वाला आदमी है, कितनी होप में जीने वाला है, और कितनी कल्पनाएं और कितना नॉनसेंस सुपरस्टिशन बेचने वाला आदमी है। ये सुपरस्टिशन है कि कल हम होंगे कामयाब। जल्दी से लिंक पर जाकर फॉर्म भरिए और अभी जोड़िए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कुछ कहूंगा वो जो मुझे लगता है कि सच है वही कहूंगा। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वही परम सच है, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखता हूँ जैसे कि ये है, तो मतलब इसकी जो खूबसूरती है, इसके अंदर जो एंटरटेनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है अगर मैं इसको गिलास बोल देता हूँ तो एक एक शब्द जो है उसने रियलिटी को, टोटलिटी को और वास्तविकता को डिस्ट्रॉय करके बांधा हुआ है। इट्स लाइक अ स्पेल, एक ताबीज़ की तरह बांधा हुआ है छोटे छोटे शब्दों में, जिनका कोई मूल्य नहीं है। यदि एक परिंदा है उसको परिंदा मैं बोल देता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ, तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ परिंदे के बारे में। और ना सिर्फ मैं जानता नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड what it is, because I am not looking at it. I haven't looked at it enough in my whole lifetime. So coming back to the scriptures, so there is a mutual understanding which is called law of the land. So the land that I have been living on for past 38 years, this is a mutual understanding that we will call ourselves Indians, and these are the codes of conduct to protect our Indianship, जिसमें हमारे ग्रंथों का सम्मान करना और उनके ऊपर हाथ रखकर कसम खाना कि आप सच बोलेंगे, ये एक रिवाज है। इसका जो पालन नहीं करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उसको जेल में डाला जा सकता है। तो ये बात समझ में आती है, तो उसका पालन क्या हम करते हैं, हम इसका पालन करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द स्क्रिप्चर, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। हाउएवर 10 years ago I claimed that I read scriptures. I read Gita, Quran, Bible, and Upanishads and understood everything. That was the greatest lie I ever told to myself and the world. Of course, I went through it and I believed I understood. But now I realize on 19th of Feb 2026 that the world is already perfect. So, which solutions was I looking for? And in reality, if there are no problems, then which problems I was trying to solve? Was it a recreation? Was it an entertainment? Was it just filling of time in quote unquote quality manner? Then it's all right. But otherwise, saying that I have read the scriptures and I have understood it, that's absolutely false. So, in conclusion, I can say that I can respect the scripture. I can take an oath over the scripture that I'll speak the truth. But I haven't read the scriptures and I'm not interested in reading any scripture or any book at all unless it is a kind of comedy that I'm interested in. So, a particular book solves problems of humans, human life, relationships, business, personal growth, health, wealth, then I'm not going to read it, because in my opinion there are no problems pertaining to health, wealth, communication, relationships, society, morality. All these are assumptions that this is how reality should be.
what is happening right now, it is happening right now. The nature of the event is A, and then this nature of this event should have been B. That's why I need to seek the wisdom of some guru or some book or some scripture. That is a scam. And when it comes to the mythological story, there is a story in the scriptures that there was a godly person. Okay, I do not have any problem in bowing down to that person or calling him God. But the myth goes like the person had some stepmother. The person had three mothers. And one of the mothers, the stepmother, wanted that godly man to go to the Vanvas, the prison, I'm sorry, the jungle for 14 years. So in last lecture, I told you a person comes to me and asks for 5,000 rupees and says he'll return in 5 days, and he does not come. His number comes blocked for 5 months. So how does a conflict begin? It is a reality that he did not want to return my money, or he is not in position to return my money. So that is not the conflict that he did not give my money. Conflict is I consider that it shouldn't have been like this, it should have been like that. And then I want solutions from the jury or from the law or from some book or some uh, story or some incident, some series of incident that happened thousands of years ago. So my whole point is that incident might be true and there might be something for some people to learn from it. So I respect their, and that's what I do, in the enlightened world. When you see someone doing which is inappropriate, so you will have to drop that perspective that what this person is doing is ethical, unethical, legal, illegal. Legal illegal to clearly define है, but good or bad, that perspective you drop, then you are already in the heaven. Is the perspective the evaluating perspective, चीजों को नाम देना, उनको मुकाम देना, उनको कुछ काम देना, ठीक है, और फिर उसको जज करना। जैसे कि पहले इसको गिलास बोलना, ये गिलास का क्या उपयोग है, गिलास पानी पीने के लिए काम में आता है, बस बर्बाद कर दी ना अपनी जिंदगी और इसकी जिंदगी। आपने पहले इसको गिलास बोल दिया, उसके अंदर जो पानी है उसको पानी बोल दिया, फिर उसको पानी का रखने के काम में आता है गिलास, ये बोल दिया, तो आपने बर्बाद कर दिया पानी और बर्बाद कर दी अपनी जिंदगानी। तो ऐसे नहीं करना होता है। सो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि thousands of years ago some series of events happened because of which something can be learned in his own life, in his own game. So be it, I don't have any problem with that. But the whole point I'm trying to make in this lecture is that I belong to the land of quote unquote India, and whatever ethical codes of conduct exist in the land of India, I abide by them. One of them is गीता पर हाथ रखकर कसम खानी है कि आपको सच बोलना है और उनका सम्मान करना है। सो मैं सच बोल सकता हूँ, स्क्रिप्चर्स का सम्मान कर सकता हूँ। कोई मुझे बोले वो स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं क्या, और वो पढ़ना चाहिए, उसको पढ़े बिना आप कैसे कुछ बोल सकते हो? तो उसको पढ़े बिना कैसे कुछ बोल सकते हैं? एक लड़की है, उसने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया, बातचीत हुई, तो एक बार मैंने उसको फ़ोन लगाया, 1 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन जब बातचीत ख़त्म होने का टाइम आया तो वो ऐसे पूछने लगी कि आपको पता है कि कॉल कैसे काटते हैं? तो वो बात कर ही रही थी, तो मैंने जैसे ही उसने बोला कि आपको पता है कैसे कॉल काटते हैं मतलब कॉल कट करना नहीं आ रहा था उसे, लास्ट वर्ड्स क्या कहें, कैसे थैंक यू बोलें, कैसे
कंक्लूड करें ना तो उसने बोला कि आई डोंट नो हाउ टू कट द कॉल, डू यू नो हाउ टू कट द कॉल? मैंने उस समय काट दिया। ठीक है, तो जैसे ये लॉजिक है ना कि आप स्क्रिप्चर्स पढ़े बिना कुछ कैसे बोल सकते हो, तो वो तो बोल ही रहा हूं ना, कैसे बोल सकता हूं। ठीक है, बट अगर ये सवाल बनता है कि बिना स्क्रिप्चर्स पढ़े आप बोल कैसे सकते हो? एक एक लड़की को मैंने यही बोला कि आचार्य प्रशांत की निंदा में और मेरी तारीफ में एक वीडियो बना, तो वो ऐसे बोली कि मैंने आचार्य प्रशांत को देखा नहीं है ज्यादा। तो मैंने उसको बोला मैंने भी कौन सा देखा है। लेकिन मैंने 13 पार्ट्स बना दिए उसके ऊपर। 13 पार्ट्स ऑफ 40 मिनट्स ईच। ठीक है, तो इसका कोई सही तरीका गलत तरीका थोड़ी ना है बेसिकली। हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति में थोड़ी ना है। वी आर नॉट इन परसूट ऑफ एनी गोल, वी आर हेयर इन द मार्केट टू जस्ट प्ले। वी डू नॉट हैव इवन an intention of getting more views or subscribers or be liked or be appreciated or make a big business out of it, make a big economic and financial machinery around it the way Acharya Prashant has done. Not the man, but the team, the marketing team, the sponsors. जैसे देखो कोई भी लेटेस्ट पोस्ट आप देखें आचार्य प्रशांत की उसमें कम्युनिटी सेक्शन में, so you will find all the answers from the sixth chakra. If you search Acharya Prashant, you will find all the answers of Acharya Prashant from sixth chakra. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि the godly man's stepmother told him to go to 14 years of वनवास। तो मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर वैल्यू सिस्टम आ जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो wherever there is a value system, मतलब मना कर देना, दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब मैं उस कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आज मेरे सामने ये सिचुएशन आए और मुझे मेरी 3 माओं में से एक माँ मुझे बोले कि आपको 14 साल के वनवास के लिए जाना है, मैंने बोला भग यहाँ से। ठीक है, मैं क्यों जाऊंगा 14 साल के वनवास के लिए, तू जाएगी 140 साल के वनवास में। ठीक है, तो ये वैसे ही कल जैसे हमने लेक्चर में बताया कि सेब गिरा, तो न्यूटन के सिर पर क्यों गिरा? और 1600 ईस्वी के पहले सेब नहीं गिर रहे थे, चीजें नहीं गिर रही थी क्या? तो दुनिया तो ग्रेविटी को ग्रेविटी बोले बिना वैसी चल रही थी और बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही थी। सो नथिंग इज हैपनिंग बेसिकली। सो ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आर based on something is happening, but nothing is happening. And there are absolutely no rules or right ways or wrong ways of doing things. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? In order to sell the morality, the mythologies have been sold. जैसे बुद्धा का, गौतम बुद्धा का जो पूरा स्कैम है, वो पूरी तरीके से मोरालिटी को सेल करने के लिए, मोरालिटी को टीच करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, विच इज जस्ट ऑल राइट। if someone is confused how to behave, then वो मोरालिटी। 11 दिन पहले हमने एक कमेंट लिखा है, चुप्पी ही सत्य है, शब्द असत्य है, कहा और लिखा गया सब कुछ असत्य है, इसलिए चुप रहे। चुप्पी ही सत्य है, शब्द असत्य है, कहा और लिखा गया सब कुछ असत्य है, इसलिए चुप रहे। तो एक आदमी कहता है कि मौन ही सत्य है, तो आप भी मौन रहिए। मौन ही सत्य है, तो आप भी मौन रहिए। तो हमने लिखा है, आवाज की अनुपस्थिति मौन नहीं होती, आवाज की अनुपस्थिति मौन नहीं होती। बकवास करना इक्वल टू मौन, इक्वल टू सत्य। बकवास करना इक्वल टू मौन, इक्वल टू सत्य। गंभीर तार्किक वाक्य इक्वल टू शोर, इक्वल टू असत्य। मतलब जैसे ही घंटी बजती है ना, ट्रेन ट्रेन, कहीं पर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उनका कोई मीनिंग नहीं है।
आप उनको रेगुलरली सुन के उनसे वाक्य नहीं बना रहे हो। अभी ट्रेन जा रही है पौ, ठीक है, तो जैसे ट्रेन जा रही है पौ वैसे ही वाक्य मैं बोल रहा हूँ। इट्स जस्ट नॉइज साउंड, डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट इट, डोंट ट्राई टू मेक एनी मीनिंग आउट ऑफ इट। और अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ मतलब निकल रहा है तो पहले डिस्क्लेमर डाला जा चुका है कि मैं तो बकवास कर रहा हूँ। आई एम अ मेंटली रिटार्डेड पर्सन हु कांट रीड बुक्स, who can be tricked into this assumption that he is reading books। मतलब मैं आईआईटी की डिग्री लेकर आ गया, मुझे आज भी कोई चैप्टर दोगे उसको पढ़ लूंगा, क्वेश्चंस का आंसर लिख दूंगा, बट उससे ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि मुझे कुछ समझ में आ गया। क्या लिखा था। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का सबूत देना, यही तो स्कैम बताया था हमने। आईआईटी प्लस आईआईएम प्लस यूपीएससी इक्वल टू आईआईटी प्लस आईआईएम प्लस यूपीएससी प्लस बाबा प्लस दैट इज प्लस स्पिरिचुअलिटी इक्वल टू एब्सोल्यूट पैथेटिक। क्या इक्वेशन हो गई? अगर आपने आईआईटी किया है, उसके बाद आपने आईआईएम भी किया है, उसके बाद आपने यूपीएससी भी किया है, उसके बाद आपने स्पिरिचुअलिटी को भी स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है, प्रीच किया है, इक्वल्स टू एपी, एब्सोल्युटली पैथेटिक। ठीक है, कंप्लीट डिजास्टर। मतलब आपको कुछ नहीं पता रियलिटी के बारे में, आप रियलिटी से उतना दूर हो। जो लोग धरती के ऊपर ऑलरेडी खड़े थे, नीचे जमीन थी, ऊपर आसमान था, चारों तरफ हवा थी, पानी था, उस सत्य को, उस यथार्थ को छोड़कर आप धरती को खोदना शुरू कर दिए और उसमें बिल बनाकर अंदर ही अंदर सत्य को खोज रहे हो, खोज रहे हो, खोज रहे हो, कहाँ नीचे जाके पहुंच गए। ठीक है, कहाँ कोने में जाके पहुंच गए। और उसमें से मेरे और यूजी कृष्णमूर्ति जैसे जो लोग हैं, मेरे और यूजी कृष्णमूर्ति जैसे जो लोग हैं, वो निकल गए दूसरे सिरे पर और दुनिया को जाकर बता रहे हैं कि सॉरी, हमसे गलती हो गई, आप ही लोग सही थे। जो लोग जॉब पे जा रहे थे, जो लोग पान की दुकान पे खड़े थे, जो लोग चाय पी रहे थे, जो लोग गुटखा चबा रहे थे, जो लोग रील चला रहे थे, जो लोग चाय पी रहे थे, जो लोग नाश्ता कर रहे थे, जो लोग क्रिकेट देख रहे थे, जो लोग समवन इज कॉलिंग। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मैं अमन अमन भटनागर है। हाँ, अमन भटनागर। बात हुई थी। कहाँ पहुंचे आप? हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं 7 बजे तक आऊँ तो चलेगा? हाँ, 7 बजे आ जाइए आप। है ना, मैं 7 बजे तक आता हूँ सर। ठीक वही लोकेशन पे है ना? या ओके ओके, आई विल। तो ये अमन भटनागर हैं। हमने एक ऐड चलाया था सीनियर आईआईटी बाबा इन अजमेर, तो उस ऐड को देखकर काफी लोगों ने आसपास संपर्क किया। उसमें से ये व्यक्ति आज मिलने को आज उपलब्ध हुए। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, प्रशांत के बारे में बता रहा था मैं आपको कि यू नो नथिंग अबाउट रियलिटी। तो आप अभी भी धरती के अंदर कहीं जाकर मोमबत्ती लेके चल रहे हो, उस मोमबत्ती के पीछे पीछे लोग भागे आ रहे हैं। सो दैट्स माई होल पॉइंट इन दिस लेक्चर, दैट I respect scriptures. I can take an oath of speaking truth on the scriptures, but neither have I read scriptures, nor I understood, nor I feel the need, nor I want to read, nor I can suggest anyone to read. So there's nothing about reading. In fact, everything that I have written in past 10 years, I have written thousands and thousands of pages. All those pages are nonsense. Yes, you know, things are nonsense. So all clown things, all joker things, all the cartoon things in the mall, in some shopping complex you see, all those things are nonsense, but still you enjoy. You people enjoy ice cream all the time, so you can enjoy these monologues, these speeches, but these speeches do not mean anything, because all these speeches are coming from the word and words mean nothing.
मौन ही सत्य है तो आप भी मौन रहिए। तो हमने कहा कि आवाज की अनुपस्थिति मौन नहीं होती, बकवास करना। अच्छा, एक और जो माइथोलॉजी है उसके अंदर भी यही सीन है। जैसे कि अगर पेड़ से सेब गिरा, न्यूटन के सिर पे गिरा तो फिजिक्स पैदा हुई, अदरवाइज फिजिक्स के पहले भी दुनिया बढ़िया चल रही थी और फिजिक्स के बाद भी दुनिया चलती ही, अगर वो न्यूटन के सिर पे ना गिर के किसी गडरिये के चरवाहे के सिर पे गिरता, जो कि असली प्रोफेट होते हैं। जो असली प्रोफेट हुए हैं वो हुए हैं जो गडरिये रहे हैं, चरवाहे रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं, गवार रहे हैं, जिनको गिनती गिनना नहीं आता कि 1 2 3 3 भेड़े हैं। वो वननेस के साथ में उनका शरीर एक विजुअली भी नहीं कहना चाहिए, उनका शरीर वन वननेस के मार्ग से जानता है कि ये 3 भेड़ हैं, ये 3 में से 2 हो गई हैं, एक कहीं खो गई है। ठीक है, उसको आवाज लगाने के लिए वो कुछ साउंड कर सकता है, बट दैट्स ऑल। सो सच अ पर्सन इज मोर क्लोज टू द ट्रुथ हु इज कम पढ़ा लिखा। जो ज्यादा पढ़वा वो उतना भड़वा, बिहार की कहावत है। सो यही सब है। अच्छा, मैं एक और बात बता रहा था कि आचार्य प्रशांत का ही सर्च करें, ठीक है, इसमें इतनी कॉमेडी है। आचार्य प्रशांत के यूट्यूब चैनल में, इसमें पोस्ट में आप जाएं तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, कहीं तो था 3 घंटे पहले, क्या है, हाँ, तुम्हारा काम ही तुम्हारी जिंदगी है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप कर रहे हैं, वो तो सही है। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी सीख करने की जरूरत नहीं, दैट्स ऑल। बट जब आप ऐसा कह देते हो तुम्हारा काम ही तुम्हारी जिंदगी है, तो इसका मतलब जो लोग आराम करना चाह रहे हैं, आप डिवीजन डाल रहे हो। सो दिस यूट्यूब चैनल इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग डिवीजन, द वे ऑल रिवोल्यूशनरी, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स and all the change makers and all the reformers, even myself till 19th of Feb 2026 was creating division and creating problem and suggesting solutions। वो सॉल्यूशन यही होता है कि हमारी आप बकबक सुन लो। ठीक है, जीवन का ज्यादातर समय काम में ही बीतना है। तो वही तो बोल रहा हूं, जिस आदमी का जीवन काम में बीत रहा है वो तो एनलाइटेंड है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोल दिया कि जीवन का ज्यादातर काम समय में ही बीतना है, तो आपने उस आदमी की वैल्यू खत्म कर दी जिसकी जिंदगी आराम में बीत रही है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे जीवन में ऐसा नहीं कि आराम करने आए, हम ये काम करने आए। जो आराम करने आए, आराम कर रहा है वो आराम करने आया है, जो काम कर रहा है वो काम करने आया है, जो हवा चल रही है चलने आई है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं ऐसा होने आया हूँ। जो हो रहा है वो उसी के लिए आया है। तो आप उसका डॉगमा मत बनाओ। जगह जगह आपने डॉगमा बना रखा है। तो काम ऐसा हो कि दर्द आए, लालच आए, डर आए। तो काम ऐसा हो कि दर्द आए, लालच आए, डर आए। अरे ऐसा कुछ भी काम ना हो, डोंट प्रीच एनी डॉगमास। तुम कहो भाई अभी व्यस्त हूं, अबे कोई व्यस्त नहीं हो, व्यस्त हूं तो व्यस्त हूं, व्यस्त नहीं हो तो मस्त हो। तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके रेस्पेक्टेड गीता सत्रों से अभी जुड़े। क्या है, दिन भर रील्स देखती रहती हूँ और आलस ही बना रहता है, क्या करूं। आचार्य प्रशांत के सत्रों से जुड़ो, मुझे तो वहीं से स्पष्टता मिली। पर ये अच्छा, अच्छा ये तो बहुत महंगे होंगे ना। नहीं, बस लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाओ। ठीक है, अभी जुड़ती हूँ। आप भी जल्दी से लिंक पर जाकर फॉर्म भरिए और अभी जुड़िए। डर, आलस, उलझन सब दूर कर देंगी ये पुस्तकें। अरे जला डालो ये पुस्तकें, डर भी दूर हो जाएगा, आलस भी दूर हो जाएगा, उलझन भी दूर हो जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आदमी पुस्तक जलाने से डर रहा हो, उसको आलस आ रहा हो, इस उलझन में हो कि जलाऊं कि नहीं जलाऊं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पुस्तक कोई भी हो, बैंक की पासबुक को छोड़कर, बैंक की पासबुक को छोड़ के, और वो बुक, वो नोटबुक जो कि आपके प्रोफेशन से, आपके बेसिक सर्वाइवल से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो कोई भी बुक या कोई भी चीज जो आपको एंटरटेन करती हो, आपको टाइम पास करती हो, वो सब ठीक है। उसके अलावा आपको लग रहा हो कि वो कहीं बुक पढ़ी है, उसको कभी टाइम निकाल के पढ़ूंगा, उसको टाइम निकाल के पढ़ूंगा तो जिंदगी में कुछ फायदा हो जाएगा मेरा, उसको तुरंत जला दो। ठीक है, मात्र 99 रुपीज में विद्यार्थी जीवन। तुलना, भटकाव, टेंशन, प्रेशर, फोकस में कमी।
तुम्हारी ताकत जगेगी कैसे अगर जिंदगी बड़ी चुनौती लोगे नहीं तो। अरे होता ना जॉर्डन पीटरसन, जब मैं 19 फेब के पहले तो मैं भी ऐसे था, क्षत्रिय था। लड़ना, प्रॉब्लम को देखो, जबरदस्ती प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो ढूंढो। कोई कोई मुझसे मिलने आता था, मैं उसको पूछा था, बोल तेरी क्या समस्या है। मुझे लगा कोई समस्या नहीं है, तो उसको लात मार के बोलता था समस्या पैदा कर। तुम्हारे जैसे लोग बिना समस्या के घूमने लगे तो हमारे जैसे लोग तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। ठीक है। तो तुम्हारी ताकत जगेगी कैसे अगर जिंदगी में बड़ी चुनौती नहीं लोगे तो। हाँ, जॉर्डन पीटरसन ने किताब लिखी है ना, 12 रूल्स ऑफ लाइफ। ये भी कॉमेडी है। रूल्स हो नहीं सकते कभी लाइफ के, और लाइफ को लाइफ बोल देने से ना बेसिकली लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ को लाइफ बोल देने से और लाइफ शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देने से सब खत्म हो जाता है। उसके बाद आप कुछ नहीं हो, यू आर जस्ट अ पैरेट रिपीटिंग वर्ड्स। तो उसने बोला पहला नियम क्या है कि सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करो, इससे आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं बोल रहा हूँ बिस्तर ठीक करी मत, वैसे ही पड़ा रहे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि माँ चिल्लाएगी, पिताजी चिल्लाएंगे कि उठ, लात मार देंगे, कुछ कमा के ला। हाँ तो ठीक है, कुछ कमा के ला देना, उसमें क्या। उसके बाद जो चिल्लाएंगे उससे कोई मीनिंग नहीं है ना, बिकॉज पीपल, व्हेन पीपल आर स्पीकिंग, दिस इज अ फैक्ट, they don't know what they're saying, they're just saying, they are repeating words and they are acting in a way that they have learned from TV। आप देखिए पिछले 50-70 साल से तो जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो टीवी के आधार पर ही चल रही है। किसी की पिताजी कैसे बात करते हैं, किसी का भैया कैसे बात करता है, किसी की बहन कैसे रोती है, किसी की माँ कैसे चिल्लाती है, सारे के सारे, किसी का बॉस कैसे दहाड़ता है, किसी का एम्प्लॉय कैसे एक्टिंग करता है, सारे के सारे लोग ये रील से, यूट्यूब से और फिल्मों से ये सब सीखे हुए हैं इधर उधर से। और एक दूसरे को देखकर, कोई टीचर को देख के सीख जाता है, कोई जॉनी लीवर को देख के सीख जाता है। तो द वे पीपल आर एक्टिंग एंड बिहेविंग, कोई डांट रहा है, चिल्ला रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। अननेसेसरली वी हैव क्रिएटेड अ डिवीजन, मतलब वी हैव नॉट क्रिएटेड अ डिवीजन, मतलब अगर ऐसा बोलूंगा कि वी हैव क्रिएटेड अ डिवीजन तो ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी प्रॉब्लम की ओर इंगित कर रहा हूँ। मतलब ये फेनोमेना है। अगर इस प्रकार से डिवीजन क्रिएट कर लिया जाए कि हम ह्यूमंस हैं और फिर ह्यूमंस खुश होते हैं, दुखी होते हैं, इस प्रकार से ईमानदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, किसी भी प्रकार से उनको लेवल में डाला जाएगा तो आप दूर हटते चले जा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप उसके पास जा रहे हो, सत्य के पास जा रहे हो, बट सत्य से दूर जा रहे हो। दिस इज अ होल पॉइंट। किसी भी चीज को पढ़कर आप बोल रहे हो कि समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी में बड़ी चुनौती, हाँ तो बता रहा था कि जॉर्डन पीटरसन बोल रहा था कि सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करो। मैं बोल रहा हूँ कि उठ ही मत, पड़ा रहे उसमें। ठीक है, तो जो भी दुनिया है वो तुझे धीरे धीरे उठा देगी और इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ काम करा देगी कि तेरा बेसिक सर्वाइवल हो जाए। बेसिक सर्वाइवल वो भी हो 2000, 5000, 20,000, जो भी हो, 2 लाख हो, डजंट मैटर। जिंदगी में बड़ी चुनौती लोगे ही नहीं। कुछ सही लगता है तो जरूर करो, चाहे जूझना पड़े, तकलीफें आए। कुछ सही लगता है तो जरूर करो, चाहे जूझना पड़े, तकलीफ। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। अरे कितना गोल सीकिंग आदमी है ये, कितना टुमारो में जीने वाला आदमी है ये, कितनी कल्पना में जीने वाला आदमी है, कितनी होप में जीने वाला है, और कितनी कल्पनाएं और कितना नॉनसेंस सुपरस्टिशन बेचने वाला आदमी है। ये सुपरस्टिशन है कि कल हम होंगे कामयाब। एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दिस इज अ स्कैम। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। हमको नहीं पता, हमको कुछ पता करना भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमको पता चल गया ना तो फिर जिस गली में हम घुस गए, वो जिस
अगर उस गली में घुस गए जिसमें ये जिससे पता चलता है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, तो उस गली के अंदर जब ये बताया जाता है ना कि तुम ये कर सकते हो, एक बार ही बताया जाता है, तो 1 करोड़ बार ये भी बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ये देख अमिताभ बच्चन ने क्या कर लिया, ये देख नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया, ये देख इसके इतने फॉलोवर आ गए, ये देख इसके कमेंट इतने आ गए, देखो उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, उसके इतने फॉलोवर आ गए, उसके इतने सब्सक्राइबर आ गए, उसकी जिंदगी में ये हो गया, तूने ये तो किया नहीं, तूने वो तो किया नहीं, तुझे ये तो आता नहीं, तुझे वो आता नहीं, अच्छा तूने सर तो अटेंड किया नहीं, तूने किताब तो पढ़ी नहीं, तुझने ये आचार्य जी के तो ये किया नहीं, वो किया नहीं, वो किया नहीं, अरे तो ये तो आता नहीं, वो तो आता नहीं, तूने या तो गया ही नहीं। अरे क्या किया यार तूने, तूने क्या किया है जिंदगी में, तूने बस ये किया है, तूने वो तो किया नहीं, तूने ये तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, तूने ये तो बना, तू ये तो बनानी, वो तो बनानी। ठीक है, तो उस गली में जाना ही नहीं जहां पर ये बताया जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि वो बेवकूफ बनाते हैं। पहले वो बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस आ गया फिर आपके सामने पत्ते फेंकती है उस गली, वो गली है, उस गली में से वो जिंदगी जो है, जिंदगी नाम की जो भी है वो गली की लड़कियां, वासनाएं, वो पत्ते फेंकती हैं कि तू कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन तूने ये तो किया नहीं, तो ये भी तो करना, तो वो भी तो कर, उसके बाद ये भी तो कर, वो भी तो कर, उसके बाद ये होली आ रही है, उसके बाद ये कर, उसके बाद ईद आ रही है, या कर, उसके बाद सर्दी आ रही है, उसके बाद ये वाला सत्र कर, उसके बाद ये वाला प्रोग्राम कर, उसके बाद ये वाला इवेंट कर, उसके बाद ये वाला रिट्रीट कर, उसके बाद ये वाला ऐसे करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, वो तो किया ही नहीं, जब तक वो नहीं किया, अरे देखो वो तो क्या कर चुका था, उसका रिकॉर्ड देखो, अरे देखो ये न्यूरोप्लास्टिटी, अरे देखो एक इंसान क्या क्या कर सकता है, अरे ये देखो ये हमारे गॉडली इंसान थे, तो वो उनकी जैसे करना, जब तक तू उनके जैसे तूने कुछ किया नहीं, तू बना नहीं, तो तूने क्या किया, तू कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू अभी भी कर सकता है, तो करना, तू क्या कर रहा है, तू कुछ तो कर नहीं रहा, अरे कर, अरे करना, अरे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, एंड व्हेन विल गोल, कोई ऐसा इंसान इसका गोल अचीव, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका गोल कभी अचीव हुआ हो लेकिन तू तो अराइज अवेक और स्टॉप नॉट, नो स्टॉप, नॉन स्टॉप, बस कीप मूविंग टुवर्ड्स द गोल, कीप मूविंग टुवर्ड्स द गोल, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितना कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप भी लिंक पर क्लिक करके सत्रों से जुड़िए अरे देखो कितना बड़ा फ्रॉड है यार, तेरे को फ्यूचर का टेंशन नहीं सताता, अब नहीं, अब मेरे पास असली हथियार है, हथियार मतलब आचार्य प्रशांत के सत्रों से जुड़ा हूं, उससे फर्क असली क्लैरिटी मिलती है और अंदर से ताकत भी है अरे यार वो क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा यार, उसके अंदर कितनी कॉमेडी फैलाता है यार ये। ओहो क्या बेच रहा है, सही राह पर चलना है तो अकेले चलने का अभ्यास करो भीड़ हमेशा सही नहीं होती यार, कितना गलत फंसा रहा है यार, ये बहुत गलत फंसा रहा है, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, भीड़ ही सही होती है भाई साहब, क्योंकि भीड़ का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लोग सर्वाइवल मैकेनिज्म में को क्रिएट करें और उसके अंदर रहें, अपने आप को सर्वाइव करके रखें, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के पीछे ना भागे, जैसे आइडेंटिटी क्रिएट करेगा वहीं पर ही प्रॉब्लम शुरू होगी और कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो गुमनाम होके मतलब किसी के अंदर आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, उसके अंदर हवा ज्यादा है, बात जाता है, बात ज्यादा करता है, वारदात ज्यादा करता है, वीडियो ज्यादा बनाता है, रील ज्यादा बनाता है, ट्रैवल ज्यादा करता है, तो उसको करने दो, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं, कॉमेडी क्रिएट होगी तो कॉमेडी देखना। ठीक है, बट ऐसा मत सोचो कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी करें, अच्छी किताबें पढ़ो, ओहो अच्छी फिल्में देखो, अरे अच्छी जगह जाओ कितना डिवीजन क्रिएट करता है यार ये, और संगति सही चुनो, वारे वाह। और अभी दिए गए लिंक पर क्लिक करके सत्रों से जुड़ो।